Hi guys, welcome in lecture number 17. लेक्चर नंबर 16 के एंड में अपन ने मोलालिटी के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे. अब इस फॉर्मूला के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, आर यू रेडी? यस. 0.01 mole of non-electrolyte is dissolved in 10 gram of water. The molality of the solution. तो पहले क्या लिखना है? यहाँ मेरे को मोल दिया है, तो मैं लिख रहा हूँ मोल ऑफ solute is equal to 0.01. फिर मेरे को दिया यहाँ 10 ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ H2O is equal to 10 ग्राम. अब मैं इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे अपन इसको is equal to 10 into 10 raised to -3 किलोग्राम. ओके, इसका आंसर आने वाला है 10 raised to -2 and is equal to 0.01 kg. ओके, नाउ मोलालिटी का फॉर्मूला था मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. कितना है? 0.01 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूट 0.01 kilogram, and so my answer is 1 molar. Clear? So answer is C. Next, calculate the molality of solution when 6 mole H2SO4 dissolve in 2 kilogram of H2O. Directly मैं लिख रहा हूँ molality is equal to moles of solute 6 divided by weight of the solvent 2 kilogram, and so my answer is 3 molar H2SO4. लिख लो इन दोनों एमसीक्यू को. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास ऑफ KOH डिसॉल्व. तो अपन को फाइंड क्या करना है यहाँ? W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देन 2 किलोग्राम ऑफ वाटर. व्हाट इज वाटर? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. Yet the given data is water and which is the solvent. So we write here W0 is equal to 2000 gram. Next, to obtain 2 molar solution. So molality, now formula of molality is equal to 1000 into W divided by molecular weight into W0. We have to find W, so W is equal to molality into molecular weight into W0 divided by 1000. Now put the value of this all the datas. Molality 2 into molecular weight of KOH, potassium 39, oxygen 16 and hydrogen is 1. So molecular weight is 56. Okay, W0 is equal to 2000 divided by, and so your answer is 224 gram of KOH must be dissolved in 2 kilogram of water to obtain 2 molar of solution. ठीक है. Now the molality of H2SO4 solution is 0.2 molar. Calculate the total weight of the solution having 1000 gram of solvent. तो पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ? W is equal to question mark. पूरे जो न्यूमेरिकल है उसमें W में नहीं दिया. ठीक है. W0 is equal to 1000 gram. Okay. Molality is given in the numerical which is 0.2 molar. Now from this formula मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ W is equal to molality into molecular weight into W0 divided by 1000.
So molality is 0.2 into molecular weight of the H2SO4, you already know, 98 into W0, the weight of the solvent is 1000 and divided by 1000, 1000 will be cancelled, and so W is equal to 19.6 gram. You know, this is the amount of solute. This is the weight of solute. And you know, this is the weight of solvent. In the numerical, we have to find total weight of the solution. So, total weight of solution is equal to weight of solute plus weight of solvent, and is equal to 19.6 plus 1000, and so my answer is 1019.6 gram. आंसर इज डी. सो यहाँ ध्यान यही रखना है कि वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है. हमें यहाँ दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ मिला वेट ऑफ सोल्यूट, दोनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा वेट ऑफ द सोल्यूशन. लिख लो एमसीक्यू. Okay guys, after completing 4 numerical on the basis of simple formula of the molality, now we are going to discuss about some numerical based on relation between molarity and molality, which we already learned in the lecture number 16, and the formula is molality is equal to 1000 into capital M divided by 1000 into D minus MM1. ओके, तो ये फॉर्मूला के बेस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं जो जेडबलई और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, रेडी ना. एक बात आपको माइंड में फिट करनी है कि जब भी मोलारिटी और मोलालिटी एक दूसरे में आपको कन्वर्ट करना है, तब याद रखना ये है वहाँ डेंसिटी आपको देनी ही चाहिए. विदाउट डेंसिटी ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मोलारिटी है ना वो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो मोलालिटी है ना वो बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट. एक जगह पर पूरा वेट ही है मोलालिटी में, और मोलारिटी में हम अपन लेते हैं वॉल्यूम. तो वेट और वॉल्यूम दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेंसिटी चाहिए. ओके, ये आपको याद रखना होगा. वेरी कंसेप्चुअल है, बहुत रट्टा नहीं मारना है, आसान है. ठीक है. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन. मोलारिटी यहां मेरे को दी है, आई हैव टू फाइंड मोलालिटी, और डेंसिटी भी मेरे को दे दी गई है. रेडी? तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला. 1000 into 3 divided by 1000 into 1.25 minus capital M molarity 3 molar. M1 is the molecular weight of solute and the solute is NaCl, so 58.5. clear? 1000 into 3, 3000 divided by 1250 minus 58.5
5 into 3 is equal to 175.5. Okay, now 3000 divided by 1074.5, and so my answer is 2.791 मोलर. ओके, दिस इज द आंसर. अब याद रखना, अगर इंटीजर टाइप का कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये पूछा है गिव द आंसर इन इंटीजर वैल्यू, तो 2.79 के नियर इंटीजर वैल्यू क्या आती है? 3. ओके, ये जेडबलई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए याद रखना जरूरी है. ठीक है. नाउ फाइंड द मोलारिटी ऑफ 2.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन. अब हमें क्या फाइंड करना है? मोलारिटी. तो नाउ आई पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. ठीक है. मोलारिटी इज इक्वल टू 2.5 मोलर is equal to 1000, and I have to find a molarity capital M divided by 1000 into 1.2 and minus H2SO4 molarity I have to find, and molecular weight of the H2SO4 is 98. ठीक है. ओके, अब क्या करना है? 2.5 is equal to 1000 m divided by 1200 minus 98 m. Okay, 1200 minus 98 m goes to this side and multiply with 2.5, and so my answer is 1200 into 2.5 minus 98 m into 2.5 and is equal to 1000 m. Okay, and so 3000 minus 245 m is equal to 1000 m, and so minus 245 m goes to this side, and so value is 1245 m is equal to 3000, and so m is equal to 3000 divided by 1245, and your answer is 2.4096 molar, and this is your answer. Okay, 2.4096 molar. बहुत ही इजी है, लेकिन इसके कुछ मैथमेटिकल स्टेप जो है थोड़े बढ़ जाते हैं. ओके, नाउ दिस एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी. आई थिंक ये हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये एमसीक्यू दिया है शायद, तो उनकी हमें क्या फाइंड करनी है? 2 मोलर. मोलारिटी तो ऑलरेडी दे दी गई है, एंड वी हैव टू फाइंड मोलालिटी. Okay, we have to find molarity of the solution. Ready? Put the value 1000 into 2 divided by 1000 into 1.025 minus 2 into इथेनॉल का मोलेक्युलर वेट है 46. ओके, सो 1000 into 2 200 divided by 1025 minus 92, and so my answer is 2.143 मोलर. ओके, तो ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है, लेकिन आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है. क्लियर? आसान एमसीक्यू है, एक आध दो बार प्रैक्टिस करना. लिख लो. Okay guys, after complete simple MCQ and the relation between molarity and molality, let us start a new topic, and the name of the topic is mole fraction.
Suppose I have a solution and the solution is made with two substance, substance A and substance B. Substance A represent solute and substance B represent solvent. So how can you calculate mole fraction of A and B? So formula is mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by total moles. Total moles is equal to Na plus Nb. Na is equal to moles of A, means moles of solute. Nb is equal to moles of B, means moles of solvent. So this is the symbol of mole fraction, X. Okay, XA means mole fraction of A, XB means mole fraction of B. So mole fraction of A is equal to Na moles of A divided by total mole Na plus Nb. As the same way, mole fraction of B is equal to number of moles of B divided by total mole. So XB is equal to Nb divided by Na plus Nb. तो जब मोल फ्रैक्शन के जब एमसीक्यू आपको सॉल्व करने होंगे तब आपको करना क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट उनके जो वेट हमें दिए हैं उनको अपन क्या करेंगे, मोल में ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेकंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्ड टोटल मोल. और ये जो तीन डेटा हमें मिल गए, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल, आपको उस सभी डेटा को इस फॉर्मूला में रखना है. वेरी सिंपल एमसीक्यू है, ठीक है. नाउ ये आपको याद रखना होगा. द सम ऑफ द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 1. फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है, देयर आर टू कंपोनेंट, टू सब्सटेंट इन अ सॉल्यूशन A and B. So sum of mole fraction of A and B is equal to 1, means XA plus XB is equal to 1. Another example, I have a solution. There are three compounds in the solution, A, B and D. Then XA plus XB plus XD is equal to 1. The sum of the mole fraction of A, B and D is equal to always 1. Okay, now रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. आगे जो मैंने रिलेशन पढ़ाया था वो अबाउट दी रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी. याद रखना, भूल मत जाना. रिलेशन तो मैं आपको दे रहा हूं, इस सभी जो शॉर्ट रिलेशन है ना उनको एक पेज में लास्ट में लिख देना आप लोग. जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2-3 लेक्चर के बाद उनको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना, तो आपको आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ये जो है ना रिलेशन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा. फिर इसके बेस्ड ऊपर जब कोई न्यूमेरिकल्स में पढ़ाऊंगा तो आप लोग बताएंगे सर कुछ आता ही नहीं हमें, तो ऐसा नहीं चलेगा. आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा. जब आप लोग साइंस में आ चुके हैं तो ये जो हैबिट है आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है. तो रिलेशन बिटवीन दी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 XA डिवाइडेड बाय XB MB. और एक बार बोल रहा हूं, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 XA डिवाइडेड बाय XB इंटू MB. याद रखना आप, वेर XA इज इक्वल टू MF मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये है ना बच्चे बहुत भूल जाते हैं, अरे यार याद ही नहीं रहते उनको. गलती क्या कर देते हैं कि XA की जगह पर ले लेते हैं सॉल्वेंट और XB की जगह पर ले लेते हैं सॉल्यूट. पूरी वाट लगा दी एमसीक्यू की. अरे यार ध्यान रखना है आपको, XA की जगह पर क्या लेना है, सॉल्यूट. सो XA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सो XB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड MB इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. याद रखना पड़ेगा.
थोड़ा समझ के आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्यों? क्योंकि जितने ही हमने फॉर्मूला पढ़े, नॉर्मालिटी के, मोलारिटी के, मोलालिटी के, उन सभी के डिवाइडेड बाय क्या करते थे हम लोग? मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन इस शॉर्ट फॉर्मूला में क्या आ रहा है? Mb इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां गलती से आप क्या मत ले लेना? मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट मत ले लेना। ठीक है? तो इस पूरे टॉपिक को आप नोटबुक में अच्छे से लिख लो। Okay, now start numerical of mole fraction. Calculate the mole fraction of NaOH and water in a solution formed by dissolving 4 gram of NaOH in 180 gram of water. Now first of all calculate moles of NaOH. Okay, 4 divided by 40, and so answer is 0.1 mole. Next, moles of H2O 180 divided by 18, so answer is 10 mole. ओके, तो पहले मैंने क्या किया? सॉल्यूट के मोल और उसके बाद सॉल्वेंट के मोल, दोनों के ही मोल फाइंड कर लिए। अब क्या करना है? टोटल मोल। सो टोटल मोल इज इक्वल टू 0.1 प्लस 10, एंड सो आंसर इज 10.1 मोल. Okay, now put these values in the formula of mole fraction. Formula of mole fraction is mole fraction of NaOH is equal to moles of NaOH is equal to 0.1 divided by total mole and is equal to 10.1, and so my answer is 0.0099. एक बात आप याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऊपर मोल आता है, यहाँ भी मोल आता है, मोल मोल कैंसल, सो देयर इज नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन. ओके, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, देखिए यहाँ तो दो ही कंपाउंड है, यहाँ तो सिर्फ दो ही कंपाउंड है ना, तो एक कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन मिल जाने के बाद अगर आप उनको 1 माइनस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा. लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो फॉर्मूला के आधार पर कर रहे हैं. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू कितने हैं? 10 डिवाइडेड बाय टोटल मोल एंड इज इक्वल टू 10.1, एंड सो आंसर इज 0.9901. ठीक है? ओके, इन दोनों का ही जो सम है वो आंसर आएगा 1. ओके, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl means solute and H2O means solvent in a solution formed by dissolving 117 ग्राम ऑफ NaCl. देखिए NaCl का हमें वेट दिया है और in 900 grams of water. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही हमें वेट दे दिए गए हैं. नाउ फर्स्ट फाइंड द मोल ऑफ NaCl 117 divided by 58.5, so answer is 2 mole. Now moles of H2O 900 divided by 80, so answer is 50 mole. Now total mole is equal to 50 plus 2 is equal to 52 mole. Clear? Mole fraction of NaCl, mole of NaCl divided by total mole, so 2 divided by 52, and so my answer is 0.0384. Clear? Next, mole fraction of H2O कैसे सोल्व करेंगे आप लोग? 1 माइनस 0.0384 कर देंगे तो भी आंसर आएगा. लेकिन मैं यहाँ फ्रॉम द फॉर्मूला यह आंसर ले रहा हूँ.
mole fraction of H2O is equal to number of mole of H2O and is equal to 50 divided by total mole is equal to 52 and so my answer is 0.9616. ओके, इन दोनों का ही सम अप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1. सो 3 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सेकंड स्टेप टोटल मोल. और थर्ड स्टेप क्या है? पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन. क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, पहले सॉल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, टोटल मोल और उसके बाद मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में इस डेटा को रख दो. यू गेट द आंसर. लिख लो. Okay guys, next 3 numericals. Equal mole of H2O and NaCl are present in a solution. तो solution में हमें क्या दिया है? Equal mole of H2O and NaCl. तो हम ये लिख पाएंगे N of H2O is equal to N of NaCl. Suppose मैं यहाँ assume कर रहा हूँ, suppose is equal to 1 mole. ये मैंने सपोज कर लिया. ठीक है. अब 1 मोल है ना, तो वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1 into 18 and is equal to 18 ग्राम. 1 मोल H2O is equal to 1 into 18 मोलिकुलर वेट है ना. और वेट ऑफ NaCl is equal to 1 मोल into मोलिकुलर वेट कितना है? 58.5. so answer is 58.5 ग्राम. ओके. नाउ अब करना क्या है? हमें मोलालिटी फाइंड करनी है. सो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? 1000 इंटू 58.5 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 58.5 इंटू 18 वेट ऑफ solvent, and so my answer is 55.55 molar. This will be cancelled. Okay. Next, mole fraction of H2SO4 is 0.2. Find the molality of aqueous H2SO4 solution. देखिए, aqueous H2SO4 solution दिया है न्यूमेरिकल में. इसका मीनिंग ये होता है कि 2 कंपाउंड है, H2SO4 है और दूसरा क्या है? वाटर. अब H2SO4 के लिए हमें मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2. तो दूसरा जो कंपाउंड है वाटर, उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 minus 0.2, क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1. यहां तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक का 0.2 है, तो दूसरा कंपोनेंट जो है उनका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 minus 0.2 and is equal to 0.8. नाउ A की जगह पर मैं यहां ले रहा हूं A is equal to H2SO4. ठीक है. And which is the solute. So इसके लिए X A is equal to 0.2. Now B की जगह पर हम क्या लिखेंगे? H2O and which is the solvent and XB is equal to 0.8. Now molality is equal to 1000 into XA divided by XB into MB. Put the values. 1000 into XA 0.2, XB 0.8. लेकिन मैंने बताया था आप यहाँ गलती मत कर देना. Here MB is equal to molecular weight of solvent, not solute. So solvent क्या है? Water.
18, and so my answer is 13.88 molar. This is the answer. Okay, next, mole fraction of A in H2O is 0.4 A. So XA is equal to 0.4. This is for solute, and XB is equal to 0.6, 1 minus 0.4, and this is for solvent. अरे यार, जिस कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिस कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन कम है वह सॉल्यूट. ओके, नाउ मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 into XA divided by XB into MB. Put the values. 1000 into 0.4 divided by 0.6 into 18. वापस में बता रहा हूँ, गलती मत कर देना. Here MB denoted molecular weight of solvent, and here solvent क्या है? यहाँ पानी है, तो पानी का मोलेक्युलर वेट क्या है? 18 यार. एंड सो आंसर इज 37.03 मोलल. ओके, दिस इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहाँ मैंने आपको जो न्यूमेरिकल करवाया है वो सिंपल न्यूमेरिकल करवाया पहले, हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन सिंपल. देन मैंने ये आपको मोल फ्रैक्शन पर से मोलारिटी कैसे फाइंड करनी, ये भी यहाँ आपको दो न्यूमेरिकल के एग्जांपल से करवाया है. लिख लो इन तीनों एमसीक्यू को. ओके गाइज, तो लेक्चर नंबर 17 के लास्ट 2 न्यूमेरिकल की ओर हम जा रहे हैं. Find mole fraction of all component in aqueous 1 molar NaCl. देखिए, हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अगर मोल फ्रैक्शन हमें दे दिए गए होते तो हम क्या करते? मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू XA डिवाइडेड बाय XB इंटू MB. इस फॉर्मूला के बेस पर से हम मोलालिटी फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो हमें मोलालिटी दे दी गई है, लेकिन मोल फ्रैक्शन XA भी नहीं दिया है और XB भी नहीं दिया है. तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 1 मोलर NaCl का मीनिंग क्या होता है? 1 मोलर NaCl इज इक्वल टू, चलो बताइए, 1 मोलर NaCl का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल NaCl in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि हमें यहाँ एक्वियस सॉल्यूशन दिया है. तो 1 मोलर NaCl इज इक्वल टू 1 मोल NaCl डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ H2O. जब हमने मोलालिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब ये मीनिंग किस तरीके से निकालना है ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल से पढ़ाया था. ठीक है, 1 मोलर NaCl का मीनिंग ये होता है 1 मोल NaCl इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ सॉल्वेंट की जगह पर मैं ले रहा हूं वाटर. नाउ ये डेटा मिलने के बाद बहुत ही आसान एमसीक्यू हो गया. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ NaCl, ये क्या है? सल्यूट. ये तो ऑलरेडी हमें मिल ही गया ना, 1 मोल. नेक्स्ट, मोल्स ऑफ H2O, ये क्या है? सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 divided by 18 and is equal to 55.55 molar. Now total mole
is equal to 56.55 मोल। और अभी जा रहे हैं अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल टू, चलो NaCl का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 56.55, 1 डिवाइडेड बाय 56.55 0.01768. okay, now mole fraction of H2O is equal to, क्या करेंगे, दो ही कंपाउंड है ना, तो 1 minus 0.01768 and so 0.98232. क्लियर? ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ ये मोलालिटी के बेस पर से मोल फ्रैक्शन जब फाइंड करना है तब डेफिनेशन के ऊपर से 1 मोलर NaCl का पहले मीनिंग निकाल लिया और उसके बाद पूरा MCQ जो है बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन 2 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, सेम कंसेप्ट, सेम फंडा, सिर्फ सॉल्यूट चेंज हो गया और 1 मोलर की जगह पर यहाँ 2 मोलर दिया है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मोलर यूरिया is equal to 2 mole urea in 1000 gram of water. Okay, now moles of urea, this is solute, is equal to 2 mole, ये तो हमें मिल गया। अब moles of water which is solvent is equal to 1000 divided by 18 and is equal to 55.55. okay, total mole is equal to 2 plus 55.55 is equal to 57.55 mole. And now mole fraction of urea is equal to 2 divided by 57.55, 0.03475। तो इस तरीके से मैंने यहाँ यूरिया के मोल फ्रैक्शन को फाइंड किया। मैं यहाँ न्यूमेरिकल में सिर्फ यूरिया के ही मोल फ्रैक्शन फाइंड करने थे, इसलिए मैं यहाँ आगे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये बताया होता फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो आपको करना क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 0.03475, ये आप लोग कर देते तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी मिल जाता। तो हमने यहाँ मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, नॉर्मालिटी और मोलारिटी, इन चारों कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जा रहे हैं परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V। ओके, इन सभी MCQ को लिख लो और बाय बाय।